नमस्कार देवियों सज्जनों। इस कार्यक्रम के तीन स्तंभ हैं: परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। अरे प्रियांशु, गलत स्क्रिप्ट खोल ली। अंडू अंडू। अरे सॉरी सॉरी, बट एक बात तो सही है। डिसिप्लिन के बिना फिटनेस अधूरी ही रहती है। आरोग्यम परम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। गुड हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून, बिकॉज व्हेन हेल्थ इज राइट, एवरीथिंग हेल्थ फाइंड इज इट्स वे। हाँ, अब शुरुआत बिल्कुल सही जगह से हुई है। और इस शाम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबसे दो बातें दिल से कहना चाहूंगी। सिर्फ तसल्ली दिल को देने से कुछ नहीं होता। सिर्फ तसल्ली दिल को देने से कुछ नहीं होता। एक दिन की योगा से भी चमत्कार नहीं होता। नहीं होता। सच थोड़ा कड़वा है, पर जरूरी है। आज जो सीखा उसे कल भी याद रखना और इस्तेमाल करना। बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। Namaste and a very good evening to everyone. A very warm welcome to all participants and our wonderful audience for last event of Wellness Week 2025 at Anon Global Foundation, the Fitness Challenge. मैं हूं इकरा फातिमा and I am absolutely thrilled to be hosting this energetic, mindful and power-packed session with all of you. So before we begin, allow us to introduce today respected jury: Dr. Aarti Girdhar, founder and president, Anon Global Foundation, and Miss Ritu Kapoor, yoga enthusiast and wellness practitioner. Your presence adds credibility, grace, and guidance to today's challenge. Now, time for our instructors who are going to make this event fun and meaningful. Miss Leena Srivastava, Miss Avisha Bansal. Quickly going through the rules. Please listen carefully because safety comes first. All participants must keep their camera on with full body visible. Wear loose, comfortable clothing. Follow the trainer's instructions at all times. No props or external support unless permitted. If you feel discomfort, inform us immediately. Points may be deducted for incorrect posture and not following the instructions. टाइम फॉर सेफ्टी गाइडलाइंस। फिटनेस का मतलब सिर्फ पुश करना नहीं, समझाना भी होता है। परफॉर्म ऑन अ नॉन स्लिपरी सर्विस। योगा मैट इज रिकमेंडेड। कीप एनफ स्पेस अराउंड यू। इफ discomfort arises, stop immediately. Jury decisions will be final and binding. याद रखिए, बॉडी को फोर्स नहीं, रिस्पेक्ट चाहिए। Quick recap of the scoring system. It will be per asan. 5 marks will be for the correct name of the asan. 10 marks posture, alignment, breathing, and execution. Total will be 15 marks per asan. We have designed three exciting rounds for you today: simple, fun, and mindful. In this round, Leena ma'am will demonstrate 10 energizing asanas. Your task: mirror each posture with focus, flow, and awareness. तो सब तैयार हो जाइए अपनी डेली हेक्टिक रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए। ओवर टू यू लीना मैम। Thank you. Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। कौन है बच्चे हमारे करने वाले? स्वस्तिका जायसवाल और आरती मैम अभी वेट करना है क्या और बच्चों के लिए? Uh, yes, we have to wait. So, Pratham, you just need to let me know who is not present, who are participating, and if anybody is not present, because there are four individuals who will be participating today. Or Akshita, please update who is missing. Mahi and What is Kushal. the marks criteria? The evaluation sheet must have been given to you, na? Hmm. नहीं आई तुम्हारे पास? Okay, I'm sharing. Okay. तो प्लीज अक्षता बताओ बाकी बच्चे कहाँ हैं?
एग्जैक्टली क्या है, देयर इज बैक टू बैक इवेंट ना, डेली हो रहे हैं, तो वो टीम को सिर्फ एक ही दिन का टाइम मिलता है सारी चीजें करने का, प्रेजेंटेशन बनाना, ये जी। करना, वो और टाइम भी बहुत वो है ना इस समय। जी। फिर ये स्क्रिप्टिंग भी करनी है एंड एवरीथिंग इज नॉट इजी, दे आर ऑलवेज ऑन द जी जी। टोज। So Ritu, just have a और look on the sheet. हाँ, जो दो लोग हैं आप लोग, ईशानवी और स्वस्तिका, अगर ये कंटेस्टेंट हैं तो आप लोगों को कैमरा ऑन करके अपनी मैट वगैरह एडजस्ट कर लेनी चाहिए। स्पॉटलाइट में अविशा को रख दीजिए जरा। स्वस्तिका, आप लोगों को अपनी मैट ऐसे लगानी है वर्टिकल, आपके मैट के चारों कॉर्नर हमें दिखने चाहिए, है ना। रितु मैम को, आरती मैम को जब आप पूरा दिखेंगे ना, तभी फिर वो सही से चीजें हो पाएंगी, हम आपको देख पाएंगे। As far as this process is concerned, जो भी स्पॉटलाइट कर रहा है, अविशा का जब भी पॉस्चर आ जाएगा उसके बाद तुम्हें स्पॉटलाइट हटा देना है, सो दैट वी कुड सी द पॉस्चर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। फिर बैक टू अविशा अगेन, फाइन। अक्षिता कौन कर रहा है? प्रथम, यू आर डूइंग इट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रथम, मेरा कैमरा, एम आई विजिबल नाउ? हाँ Yes, जी। ma'am, you are. ठीक है, क्योंकि माई डिवाइस वॉज नॉट वर्किंग फॉर द पास्ट फ्यू डेज, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। ओके, How many participants are there? till now it is two more are going to join, we are calling। प्रथम, मुझे बताओ कौन नहीं आया, बताती हूँ मैं इनको। ओके, माही जैन एंड कुणाल। माही क्योंकि अभी जैन स्क्रीन में ना एक ही आ रहे हैं। लीना मैम, हाँ, आपके कितने आ रहे प्रथम, हैं? प्रथम गैलरी व्यू पे रख कर दिया करिए, तुरंत चेंज कर दिया करिए, गैलरी व्यू में आ जाया हम्म करिए। हम्म। ओके। बस एक बार पोस्चर दिखाना है अविशा का, उसके बाद अगेन बैक टू गैलरी मोड, सो दैट ऑल द पार्टिसिपेंट आर क्लियर। Swastika, you need to rotate your camera to the horizontal position because you are not visible properly otherwise. और ईशानवी, आपको भी अपना कैमरा ऑन करके मैट एडजस्ट कर It's लीजिए। माही जैन और माही चौहान। माही जैन। मैम अभी मैं एडजस्ट करी, 2 मिनट दे दो तो उसे कैमरा सेट कर ली। माही जैन इज ऑफ बीटीआई ग्रुप, राइट? हाँ जी। वो मेरे पास नंबर नहीं है, यू नीड टू कॉल। ये बच्चे मुझसे बात ही नहीं करते, मैं सेव नहीं करती इनका नंबर। सो लेट मी टेल यू लीना जी, 6 दिन जी इवेंट चला है। पहले 5 दिन 100% पार्टिसिपेशन था, मोर जी। 15 पार्टिसिपेंट थे, पर जैसे ही योगा का नाम आता है, बैकआउट। पहले आया था कि हाँ इनको फिटनेस प्रोग्राम कराना है, प्लान करना है, ये करना है, देयर वर पार्टिसिपेंट, पर जब मैंने इंस्ट्रक्शन चेंज करा दी तो दे बैकड आउट। हाँ, और हम लोगों का तो योगा मतलब इतना फनी वे में हम लोग इतना करते हैं। और मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि मेरे स्टूडेंट ना, चाहे बच्चे हों बड़े, जब वो मुश्किल वाले आसन अचीव करते हैं ना, तो किसी मेडल से, ट्रॉफी से कम नहीं होता है। वो पीएम से मिली हुई ट्रॉफी जैसा होता है जब कोई एक मुश्किल वाला पोज हम लोग अचीव करते हैं। उस दिन इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, उसके आगे सारी खुशियां बेकार लगती है। Ishanvi, you are doing ना, you are participant ना, you have to put your mat on the horizontal form ताकि हमें तुम्हारा posture दिखे। मैट को ऐसे वर्टिकल मत रखो, हॉरिजॉन्टल रखो, ठीक है मैम। है ना लीना जी? तब जी जी जी। हाँ हाँ। हाँ, करेक्ट। स्वास्थ्य माही, आप देव, अपनी देव जायसवाल, अपना कैमरा एडजस्ट कीजिए। हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। माही, कैमरा ऑन कीजिए, अपनी मैट एडजस्ट कीजिए, कैमरा फोकस कीजिए। हाँ, देव जायसवाल में भी अपना कैमरा देव ऑटो। इज स्वास्तिका ओनली। स्वास्तिका 2 जगह से ज्वाइन कर रही है ना स्वास्तिका? No, ma'am. Actually, Dev is also participating. अच्छा, ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। स्वस्तिका, उनका भी कैमरा ऑटो रोटेट ऑन करके उसको वो हॉरिजेंटल कर दीजिए। मैं लीना जी, वैसे ये दोनों भाई बहन बहुत ही बढ़िया योगा करते हैं, लेट मी टेल अच्छा। यू विल ये बी हो गया सरप्राइज। क्या एक बार? आप कहोगे इनको अपनी टीम में लेना है। ये फंक्शन वेरी में जो आए गुड। थे।
हाँ हाँ, they are both boy, they brother sister ना, they who come हाँ for 108 सूर्य नमस्कार. हाँ हाँ हाँ, माही कैमरा ऑन कर लीजिए. ये बहुत आप ब्रिलियंट. अरे मजा आएगा इनको देखने में. सो नाउ एवरीबडी इज देयर. अभी कौन रह गया? माही जान रह गई सिर्फ. कुणाल सिंह. स्वास्तिका, ये देव का नाम नहीं है रजिस्ट्रेशन में. हाँ शुड वी ऐड? हाँ मैम, उसका नाम रह गया था. तो आपको पता है ना, सिंस ही इज नॉट एन इंटर्न, ही नीड टू पे 99 रुपीज. नो मैम. फिर बता दो, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, एक एक्सटर्नल था तो दे हैव टू फिर बाद में पे करना पड़ा था. ठीक है, कोई नहीं मैम. क्या कोई नहीं? ही इज पार्टिसिपेटिंग और नॉट? मैम ही विल पार्टिसिपेट. Okay, so Ritu, add the name Dev Jaiswal. Fine, great. कुणाल कैमरा ऑन कीजिए और अपना Now कैमरा we have फोकस कर लीजिए. 5 participants. So माही जैन है ना, बस माही जैन रह गई है. माही चौहान. नहीं, जैन. It's Mahi Jain and Mahi Chauhan has just like मैं joined बस कर रहा हूँ. to हाँ do हाँ, कुछ बच्चे that. ना ऑब्जर्वेशन के लिए आए हैं. दे हाँ वांट टू हाँ. सी, क्योंकि फ्यूचर में इन लोगों ने करना है फिर आगे के प्रोग्राम्स. दैट इज व्हाई. तो प्रथम, जस्ट रीनेम दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग ना. यू नीड टू राइट पार्टिसिपेंट आगे इनका नाम. देव जायसवाल पार्टिसिपेंट 1, स्वास्तिका जायसवाल पार्टिसिपेंट 2, ईशानवी पार्टिसिपेंट 3, कुणाल पार्टिसिपेंट 4. दिस वे, ठीक है? प्लीज रीनेम. Sure, ma'am. सो रितु, नाउ इट्स क्लियर ना, कंफ्यूजन नहीं होगी. पार्टिसिपेंट आप अपनी शीट में भी 1 2 3 नंबर लिखकर यू कैन ऑलवेज गिव. फाइन. So moderators will be sharing the profile of all Avisha, Leena ma'am, and this, and Ritu. Okay. अक्षिता, अपडेट दे दो बेटा. सारे पार्टिसिपेंट वेट नहीं कर सकते. शी इज पार्टिसिपेटिंग और नॉट? Oh, ma'am, it's just that कि क्या? everybody. So अगर कोई नहीं आ रहा तो we just can skip that person and हम नहीं बाद नहीं में नहीं आपको नहीं अपडेट कर नहीं, देंगे with आप the एक बार final तो कॉल names. करके पूछोगे ना. भूल जाता है बच्चा या स्किप हो जाता है, पता तो चले यस और नो. अच्छा, ऑल राइट. तो फिलहाल के लिए तो वी डोंट हैव नाइदर खुशी जैन नाइदर माही जैन, दोनों में से कोई नहीं है. एंड पार्टिसिपेंट्स प्रथम ने रीनेम कर दिए हैं, तो अभी के लिए वही फाइनल है. सो इट्स शानवी शर्मा, कुणाल. इन थर्ड लोगों ने रजिस्टर पार्टिसिपेंट किया इज था. देव. अक्षिता, इन दोनों ने रजिस्टर किया था. हाँ जी मैम. तो किया था तो एक बार कॉल करना बनता है. हाँ मैंने किया है पर वो उठा नहीं रहे ना. अच्छा, उठा नहीं रही. दैट इज हाँ क्लियर. वही. फाइन. चलो, ऑल द बेस्ट है. कुणाल, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. चलिए शुरू करें. थोड़ा सा वार्म अप करते हैं अपने शरीर को तैयार करने के लिए. तो आज वार्म अप हमारा चल रहा है जंपिंग जैक. सबको पता है ना जंपिंग जैक. थोड़ा सा वार्म अप करेंगे.
हाँ, स्वास्तिका थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं। ईशानवी, देव, जंपिंग जैक। हाँ, ईशानवी दोनों पैरों में गैप। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड स्वस्तिका। बहुत अच्छा है अंजू जी। अगर जंप नहीं करना चाहती है ना, तो ये ऑप्शन होता है कि दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, नमस्कार बनाइए, और एक बार अपने राइट लेग को बाहर ले जाइए, एक बार लेफ्ट लेग को बाहर ले जाइए। ठीक है ना? इजी ऑप्शन होता है। अविशा को देखिए, अविशा को देखिए। जिन लोगों को जंप नहीं करना होता है वो लोग इस तरह से जंपिंग जैक कर सकते हैं। हाँ अविशा, हाथ भी नीचे, ऊपर नीचे, हाथ हाथ हाथ। हाँ, हाथ ऊपर भी। करेक्ट। चलिए, आ जाइए वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। रेस्ट ले लीजिए सब लोग थोड़ा। दोनों पैरों में कंधे जितना फासला, दोनों हाथ कमर के पीछे, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे। आंखें कोमलता से बंद। थोड़ा लंबी गहरी सांसें लेकर सांसों को सामान्य कर लीजिए। उसके बाद करते हैं हमारा अगला आसन, वृक्ष आसन, जिसको आप लोग ट्रिपोज के नाम से भी जानते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आपके कमर के अगल बगल। दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, अपने बाएं पैर की थाई पर इस तरह से रखेंगे कि आपकी हील आपकी बॉडी को टच कर जाए। इतना टच कर जाए कि वहां से एयर भी पास ना हो, रोशनी भी पास ना हो। इतना अपनी एड़ी को आप अपने शरीर के साथ लगा करके रखेंगे। एक हाथ घुटने पर, दूसरा हाथ कंधे की सीध में ले लेंगे। जब आपकी बॉडी में वाइब्रेशन बंद हो जाए, आपको लगता है कि आप अगले स्टेप में जा सकते हैं, दोनों हाथ सिर के ऊपर नमस्कार मुद्रा में। अपने आई लेवल पर पर्टिकुलर एक पॉइंट पर देखते रहिए बिना ब्लिंक किए हुए, जिससे आपकी बॉडी बैलेंस कर सके। बैलेंसिंग पोज है, सारा काम मेंटल फोकस पर हो रहा है। हाँ देव देव देव, हाँ बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है बहुत ज्यादा, रुकने की कोशिश कीजिए। होल्ड होल्ड होल्ड, वेरी गुड स्वस्तिका। कुणाल, पैर और ऊपर आपका जा सकता है। ये लीना बिल्कुल मैम, ये मेन आराम स्क्रीन से में। दोनों हाथ गोलाकार घुमाते हुए वापस आ जाएंगे। पैर को जमीन पर रखिए। दूसरे पैर से भी यही क्रिया। रितु मैम कुछ कह रही हैं क्या? हाँ, मैं कह रही हूँ स्क्रीन में जो चारों पार्टिसिपेंट्स हैं इनके फोटो नहीं आ रही स्क्रीन पे, मेन हम स्क्रीन लोग को पे। तो आ रही है। अच्छा, मेरे को नहीं आ रही मेन स्क्रीन पे। अच्छा, तो आरती मैम फिर आप देखते रहिएगा। ऋतु, आई सजेस्ट, कई बार ऐसा हो जाता है, तो आप एक बार मोबाइल से भी लॉग इन कर लो, तो वहां से आप देख सकते हो फिर। अभिषेक आप वापस आ जाइए। हाँ, वेरी गुड ईशानवी, बहुत अच्छा है देव। पोज बहुत अच्छा था, बस बॉडी में जो वाइब्रेशन हो रही है इस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और इसके लिए देव सिर्फ एक काम करना है, पर्टिकुलर पॉइंट पर बिना ब्लिंक करे आपको देखते रहना है, आपके आई लेवल पर। ठीक है? क्योंकि ट्री पोज ना सारा आपका मेंटल फोकस का है काम। यहाँ पर पैरों का, हाथों का कोई काम नहीं है, सारा काम मेंटल फोकस का है। और हाथ की हथेलियों को और मिला लीजिए, है ना? ये जो है ना, इसको अंजलि मुद्रा बोलते हैं। ये बॉडी को बैलेंस करने के लिए जानी जाती है। और देव, अभी भी नहीं बॉडी बैलेंस हो रही है तो हाथों को ऐसे क्रॉस कर लीजिएगा, अपने थंब को। ठीक है? तो बॉडी आसानी से बैलेंस कर जाएगी। चलिए, बिल्कुल आराम से रेस्ट लीजिए। अगला पोस्चर करते हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा है देव। चलिए, वापस आ रहे, बिल्कुल आराम से वापस आइए। हमारा अगला आसन है नटराज आसन, जिसको आप लोग डांसर पोज के नाम से भी जानते होंगे। अपने कैमरे के साइडवेज खड़े हो जाएंगे। आ, हाँ, अपने कैमरे के साइडवेज खड़े हो जाएंगे, जिससे हम लोग आपको देख पाए। अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे और अपने दाएं हाथ से अपने एंकल को या टोस को, जो आप पकड़ना चाहे, आराम से पकड़ लीजिएगा। एक पैर पर बैलेंस बनाएंगे, दूसरा हाथ कंधे की सीध में सामने की ओर, हथेली जमीन की तरफ। अब धीरे धीरे बैलेंस बन गया,
जो हाथ आपने सामने लिया हुआ है उसी हाथ की उंगलियों को देखने की कोशिश कीजिए। बैलेंस बन गया है, अपने दूसरे पैर को धीरे धीरे, ईशानवी अपने पैर को हिप से और दूर ले जाने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड। जितना पैर को दूर ले जाएंगी उतना पोस्चर आपका अच्छा होता जाएगा। और इतना उठाने की कोशिश कि आपके दोनों हाथ 180 डिग्री पर आ जाए। बेस्ट पोज है स्वस्तिका, बहुत सुंदर पोज है। अगर आप स्वस्तिका दोनों हाथों से डांसर का वो बना लीजिए, आगे वाले हाथ से डांसर का पोज, ठीक है ना, नटराज आसन है। ठीक है, अगर आराम से कंफर्टेबल है तो आपका परफेक्ट पोज है। देव, सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। छोटे बच्चों के साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है, बॉडी हिलती डुलती रहती है। वेरी गुड। स्वस्तिका ने तो दोनों हाथ पकड़ लिए। नटराज का बेस्ट पोज है जो स्वस्तिका ने इस समय किया है, उन्होंने दोनों हाथ पकड़ से अपने पैर को पकड़ लिया है। बहुत सुंदर स्वस्तिका। ये पूरा नटराज आसन है। चलिए आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आइए और आसन पर बैठ करके थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। अपनी अपनी मैट पर आ जाएंगे, दोनों पैर सामने, दोनों हाथ कमर के पीछे जमीन पर रख लेंगे। गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ दीजिएगा, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। थोड़ा रेस्ट लीजिए, बैठने वाले आसन करते हैं। कुणाल, तुम्हारा ना पोस्चर प्रॉपर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कैमरा ऊपर करोगे तो दिखेगा। परफेक्ट। चलिए, हमारा अगला आसन गोमुख आसन, जिसको हम लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग काउ फेस के नाम से जानते हैं। दोनों पैर सामने, दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, अपनी थाई के ऊपर से ले जाइएगा ऐसे कि आपकी हील आपके हिप के पास पहुंच जाए। अब दूसरे पैर को भी घुटने से मोड़िए और उसको अपने थाई के नीचे से ले जाते हुए इस पैर की हील को भी अपने हिप से टच करा देंगे। चेक कीजिए, आपके दोनों घुटने एक के ऊपर एक होने चाहिए, दोनों पैर के तलवे बाहर की ओर होंगे। जो पैर आपने ऊपर रखा है वो हाथ ऊपर से, और जो पैर आप नीचे से ले गए वो हाथ नीचे से ले जा करके दोनों हाथ की उंगलियों को ग्रिप कर लीजिएगा। अब फ्रंट से देख लिया आप लोगों ने, पीछे से देख लीजिए आपके हाथों की पोजीशन। आगे से तो स्वस्तिका बहुत अच्छा है, देव आपका भी बहुत अच्छा है। और जरा हाँ कुणाल, अभी पैरों की पोजीशन नहीं बनी सही, है ना। आपका घुटना एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए, तब काउ फेस बनेगा। ठीक है। हाँ, और स्वस्तिका, ईशानवी बैक हमारी तरफ कीजिए। देव, बहुत अच्छा है, देव ने तो बहुत अच्छे से ग्रिप कर लिया है। अंजू जी, मुश्किल लगे तो पैरों की पोजीशन छोड़ दीजिएगा, सिर्फ हाथों से पीछे से ग्रिप कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ईशानवी ने ग्रिप कर लिया। कुणाल बैक दिखाइए। कुणाल जरा साइड चेंज कीजिए, देखूं बैक आपकी। स्वस्तिका और देव का तो बहुत सुंदर है, ईशानवी परफेक्ट। हाँ, कुणाल, जो आपका नीचे वाला हाथ है ना, पाम आपका पीछे के डायरेक्शन में होगा तब ग्रिप हो पाएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे, लेग चेंज कीजिए। जो पैर ऊपर था वो नीचे हो जाएगा इस बार, और जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा। और इस बार भी जो पैर आप ऊपर से लेंगे वो हाथ आप ऊपर से लेंगे, और जो पैर आपका नीचे होगा वो हाथ नीचे से ले लीजिएगा। हाथ की उंगलियों को ग्रिप करने की कोशिश कीजिए। और स्वस्तिका, ट्राई कीजिए कि आप रिस्ट पकड़ पाती हैं। देव, बैक हमारी तरफ कीजिए, देखिए रिस्ट पकड़ में आती है क्या। अगर रिस्ट, जैसे स्वस्तिका ने नटराज आसन किया ना दोनों हाथों से, अगर आपने कलाई पकड़ ली तो बहुत सुंदर पोज है आपका। वेरी गुड। कुणाल, ठीक से बैक आपकी दिख नहीं रही है क्योंकि आप साइडवेज है ना। देव ने तो रिस्ट पकड़ ली है। वेरी गुड देव, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट। चलिए, बिल्कुल, हाँ वेरी गुड कुणाल, बहुत अच्छे से ग्रिप कर लिया आपने, एक्सीलेंट। अब आपकी बैक दिख रही है अच्छे से। चलिए, बिल्कुल आराम से वापस आ जाएंगे।
और एक बार फिर थोड़ा रेस्ट कीजिए, दोनों पैर सामने फैला करके अगले पोज के लिए। थके हो तो बता दीजिएगा। रेस्ट इस तरह से करना होता है, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखते हैं, दोनों हाथ कमर के पीछे जमीन पर रख लेते हैं, बॉडी को सपोर्ट देते हैं और मन में ये इमेज सोचते हैं कि हमने जो पिछला आसन किया वहां पर हमने कहाँ कहाँ पर स्ट्रेचिंग करी, बॉडी का कौन सा पार्ट हमारा एक्सपेंड हुआ अपने रेस्ट वाले टाइम में। चलिए, बैठने वाले आसनों में ही हमारा अगला आसन उष्ट्रासन, कैमल पोज, है ना। सब बहुत पॉपुलर आसन है, आप लोग नाम से ही समझ जा रहे होंगे कौन से आसन है ये। समझ में आ रहा है ना सबको। उष्ट्रासन, दोनों पैर सामने। एक बार फिर कुणाल साइडवेज रहिएगा, ठीक है। और दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे। वेरी गुड देव और स्वस्तिका। दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, अपने दाएं हिप के नीचे रखेंगे, बॉडी को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, अपने बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ेंगे, अपने पैर को अपने हिप के नीचे ले जाएंगे। दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर हैं, बिल्कुल आराम से अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। दोनों घुटनों में कंधे जितना फासला रखेंगे, पीछे से पैरों में भी उतना ही फासला रखेंगे। दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे, और अपने कमर को आगे की ओर पुश करते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना शुरू करें। आपका दायां हाथ गोलाकार घुमाते हुए आपके दाएं पैर के तलवे पर, बायां हाथ गोलाकार घुमाते हुए अपने बाएं पैर के तलवे पर। इतना करने के बाद ध्यान रखेंगे इस बात का कि बॉडी वेट अपने घुटनों पर रखेंगे। बॉडी वेट आपके हाथों पर नहीं रखना है, बॉडी वेट शिफ्ट करके रखिए अपने घुटनों पर, नी पर। देव और स्वस्तिका, बहुत सुंदर पोज है, वेरी गुड। कुणाल थोड़ा सा और हेड डाउन कर लीजिए, गर्दन को और पीछे गिरा दीजिए, तो बहुत सुंदर पोज है। वेरी गुड ईशानवी। वापस आने के लिए अपने एक एक हाथ को गोलाकार घुमाते हुए वैसे ही वापस आइएगा जैसे आप आसन में गए थे, और बिल्कुल आराम से वापस घुटनों पर बैठ जाएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे और दोनों पैर सामने फैला करके एक बार फिर थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। देव का उष्ट्रासन बहुत सुंदर था देव, इतना हेड डाउन कर लिया था आपने। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी जिनकी बहुत अच्छी होती है ना, उन्हीं का हो पाता है। चलिए, अगला आसन करते हैं योग मुद्रा। योग मुद्रा के लिए दोनों पैर सामने, दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, पद्मासन लगाएंगे, ठीक है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, अपने लेफ्ट थाई पर रख लेंगे, लेफ्ट को मोड़ेंगे, राइट थाई पर रख लेंगे। दोनों हाथ कमर के पीछे, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे। अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर खींचे। हाँ, स्वास्तिका हाथ पीछे ले जाइए और रिस्ट को पकड़ लीजिए, रिस्ट को। हाँ, ना ना ना, बद्ध पद्मासन नहीं है, योग मुद्रा कर रहे हैं। हाथ को पकड़िए देव, हाथ को पकड़िए, ठीक है। रिस्ट पकड़िए पीछे से, ठीक है। देखिए अविशा को देखिए, ऐसे रिस्ट पकड़ना है, हाथों को पीछे ले जा करके, ठीक है। बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करिए, अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर खींचेंगे, सांस बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर की ओर दबाते जाइएगा और धीरे धीरे इतना नीचे आना है कि आपका माथा आप जमीन से, आपकी मैट से लग जाए। दोनों हाथों को उठाते जाइएगा साथ में। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ देव, वेरी गुड। हाँ, होल्ड कीजिए, होल्ड, देव होल्ड कीजिए, ब्रीदिंग पर फोकस किया करिए, ठीक है। देव, जब भी हम किसी आसन में चले जाते, अब बॉडी में मूवमेंट नहीं चाहिए, कोई हिलडुल नहीं, कुछ नहीं, सारा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर, ठीक है। टाइम स्पेंड करने की कोशिश। बहुत सुंदर है, वेरी गुड ईशानवी, कुणाल। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। पद्मासन खोल लीजिएगा, पैरों को रिलैक्स कर लेंगे। एक बार फिर दोनों पैर सीधे करके रेस्ट कर लीजिए अगले आसन के लिए।
फिर वैसे ही रेस्ट लेंगे, लंबी गहरी सांसें, डीप ब्रीदिंग। रेस्ट करना बहुत जरूरी है हर आसन के बीच में, जिससे हम अगले वाले आसन के साथ जस्टिस कर पाए, हम उसको कर पाए सही तरीके से। हमारा अगला आसन क्रॉन्च आसन। पता है आप लोग को क्रॉन्च क्या होता है? नहीं पता है ना? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। क्रॉन्च आसन, जैसे मार्जरी आसन आप लोगों ने सुना है, मार्जरी संस्कृत में बिल्ली को बोलते हैं, वैसे ही क्रॉन्च आसन। एक बगुला होता है ना, एक बर्ड है, या जिसको हेरॉन बोलते हैं, इसको संस्कृत में क्रॉन्च बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसी से लिया गया है। बगुला जो होता है ना, वो पानी में खड़ा हो जाता है और अपने एक पैर को मोड़ लेता है, और बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहता है कि कोई बड़ी मछली आएगी तो मैं उसको चोंच में फंसा लूंगा। ठीक है, ये बगुले का काम होता है। तो बगुला भी जैसे एक पैर पर खड़ा होता है ना, वैसे हम भी एक पैर को उठाएंगे आज। ठीक है, चलिए, दोनों पैर सामने। इस बार फिर साइडवेज रहिएगा, ठीक है? देव और स्वस्तिका साइडवेज रहिएगा कैमरे के। दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे और अपने पैर को अपने हिप के नीचे रख लेंगे। ठीक है, और पैर हिप के नीचे नहीं है, साइड में है। ठीक है, स्वस्तिका ठीक रखा है आपने? हाँ, अविशा ये वाला साइड दिखा दीजिए पहले। ये देखिए, पैर को ऐसे रखा है। ठीक है, दूसरा पैर आपका सीधा है। अब जो पैर को आपने मोड़ा है, उस हाथ से आप अपने सीधे वाले पैर के अंगूठे को पकड़कर उसको धीरे धीरे उठाना शुरू कीजिए। अपोजिट हैंड यूज कर रहे हैं देव, ठीक है? दूसरा हाथ जो आपका फ्री है, उसको अपने कमर के पीछे लपेट लेंगे। अपनी गर्दन को पूरा घुमाइए और पीछे वाले शोल्डर की तरफ देखिए। हाँ स्वस्तिका, पीछे वाले शोल्डर की तरफ। हाँ, पूरा बॉडी को ट्विस्ट कर दीजिए। क्रॉन्च आसन, हेरोन पोज, बगुला। हाँ, कुछ गलत हो रहा है कुणाल? हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए पैर को थोड़ा सीधा करने की कोशिश कीजिए घुटने से। देव पैर को सीधा, हाँ, अब देव परफेक्ट पोज है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आइए। साइड चेंज कीजिए, दूसरी तरफ से भी बिल्कुल आराम से जैसे गए थे। हर आसन में आपको वैसे ही वापस आना होता है जैसे हम आसन में गए थे। ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेप होते हैं वापस आने के भी। पैर को बदलिए, दूसरे पैर से यही क्रिया कीजिए। साइड चेंज कीजिए, दूसरा हाथ कमर के पीछे, अपनी गर्दन को घुमाइए पीछे की तरफ, पीछे वाले शोल्डर की तरफ, जैसे हम लोग वक्रासन करते हैं। हाँ, बस देव डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप डीप ब्रीदिंग कीजिए तो बॉडी में इतनी वाइब्रेशन नहीं होगी। आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे, और पेट के बल आकर के रेस्ट करेंगे। आ जाइए शिथिलासन में, जो कि रेस्ट भी है और आसन भी है। प्रोन पोजीशन जिसको बोला जाता है, कोरोना के टाइम में बहुत बार ऑक्सीजन कम हो जाती थी ना, डॉक्टर लोग बोलते थे प्रोन पोजीशन में लिटाइए। लोगों को लगता है योग पता नहीं क्या है, कोई बहुत महान विद्या है जिसके बारे में हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। हमारे डेली रूटीन की ही सारी चीजें हैं। ये है प्रोन पोजीशन, जिसमें आपके दोनों लंग्स दबाव में होते हैं, ऑक्सीजन आपके शरीर में ज्यादा पहुंचती है। हमारा अगला आसन धनुरासन। धनुरासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, अपने दाएं हाथ से अपने दाएं पैर को एंकल से पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर के एंकल को पकड़ लेंगे। माथा जमीन से लगा होगा। सांस भरते हुए आगे से धड़ और पीछे से दोनों पैर इतनी ऊंचाई पर उठाने की कोशिश कीजिएगा कि आपके शरीर का भार पूरा आपके पेट के ऊपर आ जाए। अब यहां पर रुकने की कोशिश। वेरी गुड स्वस्तिका, बहुत अच्छा है। हाँ कुणाल, थोड़ी सी और कोशिश, देखे थाई हवा में जाती है क्या? हाँ, बढ़िया बढ़िया।
हाँ देव, पोज बहुत अच्छा हो गया। बस बॉडी में वाइब्रेशन रोकने की कोशिश। बहुत सुंदर है। हाँ अब देव, सब अब सही हुआ आपका पोज। दोनों हाथ पूर अभिषेक वापस आके रेस्ट ले लीजिए, रेस्ट ले लीजिए। देव बहुत सुंदर पोज है, आपने दोनों हाथ सीधे कर दिए, यही करना था। ठीक है, ये पूरा पोज है, इसको बोलते हैं पूर्ण धनुरासन। एक्सीलेंट। स्वस्तिका, नेक्स्ट टाइम आप भी यही ट्राई कीजिएगा, देव की तरह दोनों हाथ सीधे कर लेंगे एल्बो से। ठीक है, तो पूर्ण धनुरासन इसको बोलते हैं, है ना, बिल्कुल एक्सटेंडेड पोज है धनुरासन का। चलिए बिल्कुल आराम से आकर के आप लोग एक बार फिर रेस्ट लीजिए। पेट के बल लेट करके एक आसन और करेंगे। थोड़ा रेस्ट, कैसे भी रेस्ट ले लीजिए, आप शिथिल आसन में, शवासन में, लीना कैसे जी भी कितने रेस्ट ले टोटल लीजिए। आसन करा रहे हैं? 10 आपने बोले थे। 10, हाँ 10, ठीक है। हाँ हाँ आप नंबर बस। बता दिया करो, आप फर्स्ट आसन, सेकंड आसन, तो थोड़ा होता है कि हाँ 10वां अच्छा आसन अच्छा, है, ठीक बस है ये डन। 8th आसन पर करने वाले हैं हम लोग। 7 हो चुके हैं, 3 ठीक आसन है, बचे हैं। ओके ओके। हाँ इसी राउंड में टाइम लग रहा है, नेक्स्ट राउंड तो हो जाएंगे जल्दी जल्दी। 8th आसन है ये हमारा। चलिए दाईं ओर करवट में आ जाएंगे। अब जो हम आसन करने वाले हैं इसका नाम है वशिष्ठ आसन। ठीक है, दाईं ओर करवट में आएंगे, आपकी बॉडी बिल्कुल एक स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अपनी एल्बो को बिल्कुल अपने शोल्डर के नीचे रखिएगा। दूसरा वाला हाथ आपके कमर के पास, बॉडी को सपोर्ट देने के लिए स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। ठीक है, ईशानवी हथेली, हाथ खोलिए और हथेली जमीन की तरफ कीजिए। हाँ, पाम मैट मैट की तरफ। ठीक है, अब धीरे से जो हाथ आपने कमर के सामने रखा है, वहां से जमीन का सहारा लेते हुए अपनी कमर को इतना उठाइए कि आपका हाथ पूरा सीधा हो जाए। हाँ पूरा वाला प्लैंक कर रहे हैं अभिषेक। जब आपकी बॉडी बैलेंस कर लेगी, या तो आप हाथ को कमर पर रख लेंगे, या आप अपने हाथ को अपने कमरे की छत की तरफ ले जाएंगे और अपने सिर को घुमा करके ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे। हाँ देव, बैलेंस करिए। हाँ बैलेंस 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 बैलेंस। बहुत अच्छा है स्वस्तिका। ईशानवी वेरी गुड। कुणाल, कुणाल मुश्किल लग रहा है, देखिए अविशा को देखिए, अपने ऊपर वाले पैर को आगे रख लीजिए तो इजी हो जाएगा करना। अपना जिसको मुश्किल लग रहा है ना देव, आप भी ऐसे ही कीजिए, ऊपर वाले पैर को आगे रख लीजिए तो इजी होगा बैलेंस बनाना। ठीक है, फिर से ट्राई कीजिए। अविशा आ जाइए वापस, साइड चेंज कीजिए। बहुत अच्छा था स्वस्तिका, लेकिन ट्राई कीजिएगा पैर एक दूसरे के ऊपर रखने की। ठीक है, आसन वही है पूरा, बॉडी एकदम स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, पैर के ऊपर पैर, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, घुटने के ऊपर घुटना। ठीक है, चलिए बिल्कुल आराम से साइड चेंज कीजिए। अगर मुश्किल लगता है तो ऊपर वाले पैर को सामने रख लीजिएगा। चलिए आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आइए और शवासन में रेस्ट ले लें। 2 आसन करेंगे हम लोग पीठ के बल लेट करके। शरीर को ढीला छोड़ देंगे शवासन में। हाँ देव, रेस्ट ले लीजिए, अभी 2 पोजेस और हैं। कुणाल लेट के रेस्ट ले लीजिए। चलिए करते हैं हमारा अगला आसन, चक्रासन, जिसको आप लोग व्हील पोज के नाम से जानते हैं। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ की हथेलियों को अपने कंधे के नीचे रख लेंगे। हाथ की उंगलियां आपके शोल्डर की तरफ होंगी और दोनों कोहनियों को मिला करके रखिएगा। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को उठाइए, पीठ को उठाइए और धीरे से अपने सिर को भी उठा लीजिए। वेरी गुड देव, के हाथ तो पैरों तक पहुंच गए हैं, ये परफेक्ट पोज है देव, यही व्हील पोज है। व्हील तब बनता है जब हमारे हाथ हमारे पैरों तक पहुंच जाए। ईशानी, ईशानवी और कुणाल, रेस्ट ले लीजिए। अविशा आप भी रेस्ट ले लीजिए। 2 आसन करेंगे हम लोग पीठ के बल लेट करके। शरीर को ढीला छोड़ देंगे शवासन में। हाँ देव, रेस्ट ले लीजिए, अभी 2 पोजेस और हैं। कुणाल लेट के रेस्ट ले लीजिए। अविशा आप भी रेस्ट ले लीजिए।
वेरी गुड, परफेक्ट पोज है देव। बस स्वस्तिका हाथ पहुंचने वाला है आपका। स्वस्तिका क्रॉल करके ले जाइए, हाथों को उठाइएगा नहीं, हाथ उठाइएगा नहीं, हाँ ऐसे उंगलियों को क्रॉल करते हुए पैरों तक ले जाइए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा स्वस्तिका, हाथ पहुंच गए आपके पैर तक। कुणाल बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश। बिल्कुल आराम से वापस आइए। ईशानवी, फिस्ट बना करके उनको रोटेट कर लीजिए, हाथों को रोटेट कर लीजिए। स्ट्रेन आया ना रिस्ट पर, उनको रोटेट करके कुणाल आप भी रोटेट करके रिलैक्स कर लीजिए। वेरी गुड स्वस्तिका, आ जाइए वापस, बहुत अच्छी टाइमिंग थी, बहुत अच्छी टाइमिंग थी स्वस्तिका। वेरी गुड स्वस्तिका, वापस नीचे जाने के बाद पूरा सीधा खड़े होके वापस आएंगे व्हील पोज में। वेरी गुड। चलिए स्वस्तिका रेस्ट लीजिए, अगला पोज बहुत आसान है, आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे। स्वस्तिका रिस्ट को रोटेट कर लीजिएगा, अच्छा रिस्ट को रोटेट कर लीजिएगा। अगला आसन बहुत आसान आसन है, पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों घुटनों को अपने चेस्ट पर ले जाएंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को आपस, देखिए दो तीन कंडीशन मैं बता रही हूं, आप लोग जो बेस्ट हो सकता है वो कीजिएगा। पहली स्थिति, दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाइए, ठीक है। अगर आपने आराम से कर लिया है तो फिर रिस्ट पकड़ लीजिएगा। जिन लोगों ने आराम से उंगलियां फंसा ली हैं, शानवी, हाँ, कुणाल, घुटने और चेस्ट के ऊपर जाएंगे आपके अभी, है ना। पवन मुक्त आसन है, पेट पर दबाव बनना चाहिए। जिन लोगों ने आराम से रिस्ट भी पकड़ लिए, अपनी एल्बो पकड़ने की कोशिश करिए, जरा और स्ट्रेचिंग कीजिए, और दबाइए पैरों को, और दबाइए, हाथों को लीजिए अपने उस पर और एल्बो से पकड़िए। वेरी गुड ईशानवी, पकड़ लिया आपने एल्बो। स्वस्तिका, बहुत अच्छा है देव। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हुए अपने सिर को उठाकर नाक को अपने दोनों घुटनों के बीच में ले जा करके रोकने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर है देव। स्वस्तिका, कुणाल बढ़िया। अभी यहाँ पर दोलन कर सकते हैं आप लोग, इसी पोज में रहते हुए उठ करके बैठ सकते हैं और लेट सकते हैं बिना पोस्चर चेंज किए, बैठना और लेटना। एक्सीलेंट, हाँ देव करते जाइए, कंटिन्यू 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 करते जाइए। बार बार लेटिए बैठिए बिना पोस्चर चेंज किए, नाक दोनों घुटनों के बीच में रहेगी, पोस्चर नहीं चेंज हो रहा है। हाँ वेरी गुड स्वस्तिका। चलिए आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आ जाइए, थोड़ा रेस्ट लीजिए। आते हैं हम लोग राउंड 2 के लिए। कैसे भी रेस्ट ले लीजिए, लेट के, बैठ के, जैसे रेस्ट लेना चाहे ले लीजिए। अभी राउंड 2 हमारा क्या है, आविशा आसन करेंगी और आप लोग नाम बताएंगे और नाम बेटर ये अनम्यूट होगा कि कीजिए। ना, बेटर ये होगा कि ये क्योंकि राम बताएंगे तो बहुत इको भी हो सकता है, तो आप लोगों को टाइप करना है। जो सबसे पहले टाइप करेगा उसको हम कंसीडर करेंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन बोल रहा है। फाइन। सो अभी स्पॉटलाइट अवीशा पे होगा पूरा। जैसे पहला क्वेश्चन करेंगे, आपकी चैट हम देख रहे हैं, ठीक है। सो बी रेडी ऑन द चैट, यू जस्ट नीड टू टाइप, है ना लीला जी, इज इज फाइन। जी, हम्म। बार बार म्यूट अनम्यूट भी नहीं करना पड़ेगा, चैट बॉक्स में नाम लिखते रहिएगा। चलिए राउंड 2 स्टार्ट है, आप लोग देखते रहिएगा, अविशा आसन करने जा रही हैं। जल्दी जल्दी पास में आइए और जल्दी जल्दी टाइप कीजिए।
जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, अविशा तो जल्दी जल्दी आसन करती जा रही है। लीना जी 1 2 3 बोलते रहो साथ में ना, ताकि वो कि भाई। अच्छा ठीक है ठीक है, फोर्थ फोर्थ कर रही है अविशा, फोर्थ नंबर कर रही है। अविशा को पता है, सीक्वेंस पता है उनको। उनको पता है ना, ये बच्चों को नहीं पता चलेगा। जी। ठीक है। फोर्थ आसन। 5। अविशा रेस्ट ले लीजिएगा, अच्छा अगर जरूरत हो तो। लीना जी साथ साथ ना आप बढ़ते जाओ कि इस बच्चे ने क्या लिखा, क्योंकि जो फर्स्ट बच्चा है ना उसका फिर पता चल जाएगा कि, जी क्योंकि जी बाकी तो जी ऑब्वियसली ऐसा लगेगा कि कॉपी कर रहे हैं, जबकि नहीं जी कॉपी करेंगे। बट जी। यस वी विल बी कंसीडरिंग द फर्स्ट वन। सिक्स आसन। सिक्स आसन। स्वास्तिका और देव ही ज्यादा जवाब दे रहे हैं, बाकी तो मुझे जवाब दिख नहीं रहे। 6 नंबर आसन है ये। एक एक साइड से ही करिएगा अभिषा। 7। देव ने लिखा है कौन सा आसन। 7 आंसर, 7 आसन का नाम बताइए, सेवेंथ का नाम बताइए। 8। सेवेंथ का नाम किसी ने नहीं बताया। लीना जी आप बता दो सेवंथ का आंसर। सेवेंथ था वशिष्ठ आसन। साइड प्लैंक जो किया था ना, वशिष्ठ आसन। वशिष्ठ जो गुरु थे ना भगवान राम के, उनके नाम से आसन है ये। ये वाला बताइए, एट्थ बताइए। हाँ स्वास्तिका, करेक्ट। आसन नंबर 9। बताइए बताइए। ईशानवी, वेरी गुड। कुणाल, वेरी गुड। आसन नंबर 10। स्वास्तिका देव जल्दी जल्दी टाइप किया करिए। आसन नंबर 10। ठीक है स्वस्तिका, 10 का बताइए। 10 के लिए बताइए। आ, हाँ वो शायद देव टाइपिंग की मिस्टेक कर दी है आपने शायद। हाँ ठीक है स्वस्तिका, करेक्ट। चलिए राउंड 2। अभिशाप रेस्ट ले लीजिएगा, ठीक है। राउंड 3 पर आते हैं। राउंड 3 के लिए आप लोग फिर से अपनी अपनी मैट पर चले जाइए, कैमरा फोकस कर लीजिए। अब मैं आसनों के नाम बोलूंगी और आप लोग करेंगे। लीना जी आपको जिसका आसन परफेक्ट लगेगा आपने उसका नाम बताना है, हम उसी को स्कोर करेंगे। ठीक है। हम्म। चलिए अपना अपना कैमरा फोकस कीजिए। कुणाल वैसे ही कैमरा कर लीजिए जैसे आप पहले कर रहे थे। ठीक है देव, जाइए अपने मैट पर जाइए देव, डिवाइस से दूर जाइए। देव का पॉज हो गया वीडियो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए ऑल सेट, शुरू करें। स्वस्तिका मैट पर आइए। हाँ ईशानवी, ठीक है। हाँ चलिए, पहला आसन नटराज आसन। आइए नटराज आसन के लिए। हाँ कुणाल सोचिए सोचिए सोचिए। स्वस्तिका वेरी गुड, बेस्ट पोज है।
बेस्ट पोज है स्वस्तिका, नटराज आसन। हाँ बढ़िया। कुणाल, ईशानवी, कोश बॉडी डिसबैलेंस हो रही है, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। हाँ कुणाल, आगे झुकना नहीं था, ठीक है। चलिए इसको करेक्शन करेंगे। आइए वापस आइए दूसरे आसन के लिए, दूसरे आसन के लिए वापस आइए। ईशान भी अपना कैमरा ठीक कर लो बच्चे। हम्म। दूसरा आसन, योग मुद्रा। चलिए आइए योग मुद्रा के लिए। हाँ वेरी गुड। स्वस्तिका और देव, परफेक्ट पोज है, परफेक्ट पोज। बेस्ट पोज है देव आपका, स्वस्तिका आपका भी बहुत सुंदर पोज है, एक्सीलेंट। चलिए वापस आइए। हाँ कुणाल, गलत आसन हुआ ये, ठीक है, ये योग मुद्रा नहीं था, ठीक है। तीसरा, चलिए थर्ड आसन, वशिष्ठ आसन। तीसरा पोज हमारा वशिष्ठ आसन। वेरी गुड स्वस्तिका। देव, बहुत अच्छा है देव, इस बार आपने बहुत अच्छा किया, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा है स्वस्तिका। चलिए आ जाइए वापस। फोर्थ आसन, पवन मुक्त आसन। बहुत अच्छा है ईशानवी, वेरी गुड। हाँ कुणाल, अभी भी गलत हो गया आपका ये, है ना, ये पवन मुक्त आसन नहीं है। चलिए वापस आइए। नेक्स्ट फिफ्थ आसन हमारा, बिल्कुल आराम से वापस आइए, वृक्ष आसन। हाँ हाँ देव आइए, देव आसन के लिए आइए, वृक्ष आसन। बहुत सुंदर स्वस्तिका, वेरी गुड। ईशानवी, मैं जितना देख पा रही हूँ पैर आपके बहुत अच्छी पोजीशन है, बॉडी का अपर पार्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पैरों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है। आ जाएंगे वापस, बहुत अच्छा है ईशानवी। चलिए अगला आसन हमारा सिक्स पोज, क्रंच आसन, हेरोन पोज। किसको किसको याद है? हाँ वेरी गुड स्वस्तिका, एक्सीलेंट। पोज भी बहुत सुंदर है और आपको याद भी था, आप तुरंत आ गए, देव भी आ गए तुरंत आसन में। क्या हुआ ईशानवी, भूल गए? कुणाल भूल गए? चलिए कोई कोई नहीं, कोई नहीं, चलिए आप लोग भी वापस आइए, चक्रासन। हाँ बहुत अच्छा है ईशानवी, याद है आपको। हाँ कुणाल, सोचिए 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 सोचिए, ना ना ना, अभी भी गलत है कुणाल। वेरी गुड स्वस्तिका, बढ़िया। देव, वेरी गुड। अभी ये दूसरा आसन है वैसे, जो आपने कर दिया है वो उसका भी एडवांस पोज है जो आपने किया है, लेकिन आपको पता है चक्रासन क्या है। वेरी गुड स्वस्तिका। चलिए बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। हमारा अगला आसन, गोमुख आसन। वेरी गुड स्वस्तिका, बहुत अच्छा है, गोमुख आसन। हाँ सोचिए कुणाल। हाँ देव का हो गया, स्वस्तिका हो गया,
बढ़िया। नहीं कुणाल, अभी भी गलत हो गया ये आपका। हाँ। आसन सही हो रहे हैं, बस कुणाल नामों का कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। आसन सब सब आपको याद है, बस नामों का कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए वापस आ जाएंगे गोमुख आसन से। हमारा अगला आसन धनुरासन, नाइन्थ आसन धनुरासन। आइए धनुरासन के लिए बो पोज, जिसको बो पोज के नाम से जानते हैं। स्वस्तिका धनुरासन। वेरी गुड ईशानवी। ईशानवी आ गई है धनुरासन में। देव कैमरा ऑफ हो गया आपका। हाँ बहुत अच्छा है। हाँ चलिए चलिए कर लीजिए, दिख रहे हैं आप। देव दिख रहे हैं, वहीं कर लीजिए, इसी इसी कैमरे में कर लीजिए दोनों लोग। हाँ यहीं पर कर लीजिए, हम देख रहे हैं। ईशानवी वापस आ जाइए, स्वस्तिका वापस आ जाइए। अब स्वास्तिका का भी कैमरा ऑफ हो गया। लास्ट आसन है हमारा ओष्ट्रासन, टेंथ पोज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ धनुरासन देव। हाँ स्वस्तिका वापस आइए, टेंथ पोज उष्ट्रासन। हाँ कुणाल याद है उष्ट्रासन? कैमल पोज, कैमल पोज। हाँ स्वस्तिका देव ईशानवी, वेरी गुड। बहुत देव का बेस्ट पोज होता है। धन ये तो उष्ट्रासन तो बेस्ट है इनका। हाथ कहाँ तक पहुंच गए हैं। और देव थोड़ा काम करिएगा, थोड़े दिन रोज प्रैक्टिस करिएगा, आपके सिर का ऊपरी हिस्सा जमीन को भी टच कर जाएगा थोड़े दिनों में। आज नहीं, लीजिए आज ही टच करा दिया उन्होंने। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बिल्कुल आराम से वापस आइए। हमारा राउंड 3 कंप्लीट हुआ। वेरी गुड, बहुत अच्छा था। एक्सीलेंट बच्चों। रेस्ट ले ले लीजिए स्वस्तिका और देव। कुणाल रेस्ट ले लीजिए। ओवर टू यू प्रथम। Okay, let me speak. Uh, we have seen the kind of effort we are putting on the yoga, but still the destination is very far. बहुत दूर तक जाना है हमको, क्योंकि हमारे टीनेजर जब तक 100% अटेंडेंस नहीं आएगी बच्चों की, दैट मीन्स हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है फॉर वेलनेस। वी हैव कंक्लूडेड दिस 6th day ऑफ वेलनेस वीक विद द इंटेंशन कि ये स्टेप वेलनेस, आपको अगर ये समझ में आ गया ना, देन यू कैन अचीव एनी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो हम 21st century स्किल्स की बात करते हैं, वो पॉसिबल होंगे अगर आप योग को समझ जाओगे, व्हाट मैजिक इट इज डूइंग। ठीक है, तो दोज हु हैव अटेंडेड टुडे, please share this message to the other that it is, we are putting a lot of effort in it, so as a gratitude also you should come over and participate. लीना जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना अब तक सपोर्ट किया हमको, और आप करते भी रहोगे। और आप जो जिस कॉज के साथ हमारे साथ जुड़े हो, मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ आपको। एंड अविशा, यू आर टू गुड। आई एम श्योर आज स्वास्तिका, ये और देव और ईशानवी, कुणाल, इन सब के एफर्ट को देखकर ना आपको लगा होगा कि हाँ, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ आर यू टू डू द बेस्ट थिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, और आरती जी थैंक यू आपको भी। और मतलब मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। आप लोग जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं ना, तो आप लोगों के साथ आके लगता है ना, कुछ एक बूंद भर कुछ मैंने भी उसमें, मेरा भी योगदान हो गया। तो
तो वो मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि जब मैं आपके लिए, एनॉन के लिए काम करती हूँ ना, तो मैं प्राउड फील करने लगती हूँ कि आपके इतना बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं ना, कि उसमें चलो छोटा सा शेयर एक मेरा भी हो जाता है। तो वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा, बच्चों का एफर्ट ना, जैसे कुणाल चीजें भूल रहे थे, लेकिन ना उनका फेस का एक्सप्रेशन, उनकी एनर्जी, तो वो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब कुणाल अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डाल रहे हैं, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं थी। वो अलग बात है कि जो बहुत सालों से कर रहा है, या अंजू जी कर रही थी ना, अंजू जी को मैंने अलग से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही थी, लेकिन वो कर रही थी ना, वो इतना एफर्ट डाल रही थी कि मैं चाह रही थी कि मैं उनको उनकी एज के हिसाब से उनको हेल्प कर पाऊं। लेकिन यहाँ पर चूंकि टाइम हमारा लिमिटेड है, इसलिए हम टाइम बहुत ज्यादा आगे बढ़ा नहीं सकते। लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था अंजू जी को देख करके कि मैं इनकी हेल्प करूं, इनके आसन ठीक करवा दूं यहाँ पर। और कुणाल और इन लोगों का, ईशानवी, बहुत अच्छा एफर्ट था आप लोगों का, बहुत मेहनत कर रहे थे, और सच में लग रहा था कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। पूरा टाइम मुझे लगा कि आप लोग बोर नहीं हो रहे थे, आप सब एंजॉय कर रहे थे। और बस इनफैक्ट उसी जिन्होंने से अटेंड हमें किया, लगता है कि चलो हमारी मेहनत सफल हो गई। इनफैक्ट जिन्होंने अटेंड किया ना, वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे कि किस तरह के पॉस्चर हो रहे हैं एंड ऑल दैट। द मेन थिंग इज फॉर डूइंग दिस इवेंट, कि लीना जी जो है प्री सर्विस करती हैं, मॉर्निंग में सेशंस लेती हैं ये, जिसमें आप, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास टाइम है, या आपके कोई नोन जिनको कोई मेडिकल इश्यूज हैं जिससे वो आसन नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह के सिंपल आसन करके बहुत लोग लीना मैम की वजह से ठीक हुए हैं। तो मैं तो चाहूंगी मेरी कम्युनिटी जो है वो लीना मैम के साथ जुड़े। ये फ्री वर्कशॉप्स, ये सेशंस लेती हैं मॉर्निंग में 6:45 to 8 AM। इनके मंडे टू सैटरडे सेशंस होते हैं। और अगर आप कहोगे लिंक, मैं लीना जी, मैं आपको बताऊं, मैंने कम से कम 100 लोगों को शेयर किया है आपका ये मॉर्निंग वाले लिंक। बट द प्रॉब्लम इज लोग हाँ कर देते हैं पर आते नहीं है, कहते हैं हम सुबह आते नहीं नहीं उठ है। सकते। हाँ। सुबह उठना इतना जरूरी है। आप अगर लंबी और अच्छी जिंदगी, हैप्पी जिंदगी चाहते हो ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई अर्ली मॉर्निंग राइज इज इम्पोर्टेंट। फाइन। और इसी के साथ मैं चाहूंगी, अविशा, हाउ डू यू फील? बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। सब स्टूडेंट्स को देख के भी बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने इतने अच्छे से, डेडिकेशन से, अच्छे एफर्ट से सब बहुत अच्छे से किया। और मैं इस फाउंडेशन का पार्ट बन पाई, इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो Thank मच। you, Avisha. Avisha, your postures, I'm your fan actually. The kind of posture perfect you do. तो तुम हीरोइन हो इस वो ऑर्गेनाइजेशन की, योगा वाले ऑर्गेनाइजेशन की। मैं क्या बताऊं आपको, ऑनलाइन में यू आर टू गुड। और अदरवाइज तो इन पर्सन तो हम मिल नहीं पाते क्योंकि हम लोग दूर दूर रहते हैं, बट दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जो लीना जी ने शुरू किया है। फाइन। जी, एंड बिल्कुल। विद दिस तो आई पूरा वांटेड टू, हो जाता है, हमने कितनी पेशेंट हम सबके साथ डील किया है। तो इस चीज का पूरा क्रेडिट मैम को है। यस। और थैंक्स टू मैम, आपसे भी कनेक्ट हो पाया, आप सबसे कनेक्शन हो पाया मेरा। थैंक यू सो मच। सो ये वो परिवार आपका बड़े, मैं तो यही चाहूंगी जितने लोग मेरे थ्रू जुड़ पाए योगा में, दैट इज व्हाट माय मिशन। बिकॉज और मैं बहुत सारी एलिमेंट्स से गुजरी हूँ और योगा ने ही मुझे ठीक किया। दैट इज व्हाई आई वांट कि व्हाई बैक टू द कल्चर। पर बच्चों को, टीनेजर्स को अगर समझ में आ गया ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो दोज हु हैव अटेंडेड, हाँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मेरा भी एक मैसेज है आज आप लोगों के लिए, एक मैसेज मेरा भी है। योग में जब हम लोग आते हैं ना, जब हम बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, मतलब हम एज ए थेरेपी आते हैं यहाँ पर। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि योग को थेरेपी मत मानिए, इसको लाइफ स्टाइल मानिए। मतलब हमें बीमार होना नहीं है, हमें बीमार होने के बाद योग नहीं करना है। तो वो शुरुआत कब से होगी? आप लोगों की एज से। तो स्वस्तिका है, देव है, आप लोग भी जिस दिन छुट्टी हो, स्कूल नहीं होते, समर वेकेशन होते हैं, विंटर वेकेशन होते हैं, उस समय क्लास में आइए। आप लोगों के पोजेस को ना मैं और इम्प्रूव करा सकती हूँ।
देव जैसे कर रहा था, स्वस्तिका जैसे या कुणाल कर रहे थे, मैं आपके पोजेस और इम्प्रूव कराऊंगी। सिर्फ छुट्टी छुट्टी वाले दिन आ जाया करिए क्लास में, जिस दिन छुट्टी हो तो मैं आपके पोजेस और इम्प्रूव करा दूं। और इसको छोड़ना नहीं है कभी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको छोड़ना नहीं है कभी, है ना। स्पोर्ट्स एक्टिविटी चाहे जितनी कर लीजिएगा, स्वस्तिका, देव, कुणाल, ईशानवी, सबको बोल रही हूँ, जितने स्पोर्ट्स करने हैं करिएगा, योग कभी मत छोड़िएगा, इसके साथ जुड़े रहिएगा। इसको बिल्कुल लाइफ स्टाइल, जैसे सांसें ले रहे हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, जैसे सो रहे हैं, जैसे नहा रहे हैं, वैसे इसको लाइफ स्टाइल बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। बहुत हम लोग गलती ये करते हैं ना, रितु मैम भी है, गलती करते हैं ना हम लोग, थेरेपी समझ करके आते हैं कि हाँ, अब घुटने खराब हो गए तो अब एक्सरसाइज करनी है। अब चले। नहीं, हाँ, घुटने खराब होने से पहले शुरू कर दीजिए ना, तो घुटने खराब नहीं होंगे। तो ये एज है जिस एज में देव है, स्वस्तिका है, और प्रियांशु, माही, प्रथम, आप लोग भी सुन रहे हैं ना, योग को एकदम लाइफ स्टाइल बना लीजिए। जिंदगी बदल, मेरी तो जिंदगी बदल गई है। मैंने कितने लोगों की देखी है, जिंदगी बदल गई है योग से। तो एक अच्छी शुरुआत एडिक्शन। आपकी लाइफ में। जी मैम बोलिए। एडिक्शन, मैं तो स्टूडेंट से यही कहूंगी कि जैसे आप और चीजों के लिए एडिक्ट है, सेम ऐसे योग के लिए भी जरूर एडिक्ट हो जाए। बिल्कुल, जैसे आप खा पी रहे हैं ऐसे जरूर मॉर्निंग में सुबह उठ के योग जरूर कीजिए। लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, कामनेस आएगी आप में, डेडिकेट हो जाएंगे आप जो भी काम करेंगे। बिल्कुल माय सही, मैसेज बिल्कुल इज सही कह रही है मैम। राइट। So with this, I feel मैसेज जो देना था हमें, चाहे 4 participant ही थे, but it's a bigger message we want to give out to the teenagers, and why we have concluded this wellness event with this kind of competition is just to make you understand कि अभी नहीं समझोगे, बाद में समझोगे, but end of the day you have to adopt yoga. So it is better the early you start working on it. Fine. With this, thank you very much. So, Tomorrow we will be disturbing everyone again to join for the result announcement. And Alina ji, you are also most welcome to be a part of it and witness it. Avisha, if you want to see कि हम wellness पे कैसे काम कर रहे हैं और क्या क्या करते हैं, so that you can spread the message in your community for teenagers, what kind of work we are doing, आपको समझ में आएगा. Fine. so So थैंक यू सो मीना जी, मच। आपको आपके पास लिंक है या आप अवीशा को भी शेयर कर देना. लेट हर ऑल्सो ज्वाइन एंड विटनेस द फेलिसिटेशन ऑफ द रिजल्ट अनाउंसमेंट ऑफ दिस वीक. फाइन. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. वी एंजॉयड अ लॉट. थैंक यू एवरीवन। so ma'am, Yeah. thank you everyone for the incredible energy, discipline, and participation. It was a truly heartwarming to see you all focused and committed. Anon Fitness Challenge 2025 was not just about asanas, it was about health, happiness, and togetherness. So stay active, stay motivated, have a healthy, peaceful, and wonderful night. Before we wrap, Before we let's wrap just up, take please a make non. way for an Yes. quick group click. प्रथम भैया प्लीज. हाँ, हमने फोटो तो खींची नहीं. Kunal, can we please have your cameras on, please? कुणाल को काफी टाइम बाद में देख रही हूँ, मजा आ रहा है, अच्छा लगा देख के. प्रथम डन. Okay, thank you very much. Thank you, ma'am. Have a wonderful night. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Thank you, ma'am. Good night. Pratham, you can now switch over the